Good morning, students. Yesterday we have discussed the public corporation and some of features of public corporation. So we have discussed up till fourth point. है ना, separate legal entity we have discussed कि that type of business which is registered, which is compulsory registered under any special act, which is formed under any special act, that business only have separate legal existence, like company, like LLP, and like public corporation. As I have told you, public corporation is that corporation which is under the control of state or central or state government, and it is formed under the special act by parliament or central or state legislature. So it is formed under the act, that's why it has a separate legal existence. Next is, it is managed by the board of directors who are nominated by the government. This point says कि all the work, all the things will be managed by board of directors of that corporation, and board of directors, who will appoint these board of directors? Of course, government, है ना. तो government officials or government members will select and choose the board of directors of the corporation separately, and these board of directors will manage and control all things, all the workings of the corporation. Next is, the public corporation has its own rules of recruitment and remuneration for its staff and employees. As I have told you, departmental undertakings, they can't expend, or they can't give any money, give any their decision or any advice to the public, to the government. उनको बिल्कुल भी कोई राइट नहीं होता है कि वो 1 रुपये भी, जो भी गवर्नमेंट ने अपने एनुअल बजट से फाइनेंस उनको करके कैपिटल दिया है, उससे अलावा वो कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट कर सकें, या अपने स्टाफ के एम्प्लॉइज़ या स्टाफ मेंबर्स के रिक्रूटमेंट के अपने से रूल्स बना सकें. दैट रूल्स विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट in the parliament house, only that rules, only that decision will be followed by the departmental undertakings, है ना. only that much amount which is given by the government being used in departmental undertakings. So but in public corporation, they have the right, they have the power to recruit any staff members, to recruit any employees, and to give the अमाउंट, टू गिव द पेमेंट, सैलरी. ठीक है, तो इनको ये पावर्स होती हैं कि ये अपने किसी भी स्टाफ मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ को अपने बेसिस पे रिक्रूट करके अपने कॉरपोरेशन में एज एन वर्कर ला सकते हैं, और जाहिर है वर्किंग होगी तो उनको सैलरी भी उनके अकॉर्डिंग दी जाएगी. नेक्स्ट इज, इट एन्जॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और पहले भी और सारे टाइप ऑफ बिजनेस में बताए थे कि बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है. जैसे हमने डिपार्टमेंटल में ही बताया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या जो पार्लियामेंट हाउस के मेंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पावर्स होते हैं, सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं. तो जो वो डिसाइड करके देते हैं, सारे डिसीजन देते हैं, सब वही डिसाइड करते हैं. हमारे हाथ में या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जो हेड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है. तो वहाँ पर ऑटोनॉमी कैसी थी? सारी चीज़ों का, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस था. लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, पावर्स और राइट्स उनके हाथ में होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है. नेक्स्ट इज़, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक. In the very starting, yesterday, and I have told you yesterday कि a public corporation, that corporation, the name is very simple कि public corporation means that corporation which is made for the public, for the welfare of the public. So when that corporation which is made for the welfare of the public, that corporation have the objective to give the services to the public, है ना. पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. कल जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि पब्लिक कॉरपोरेशन ऐसा कॉरपोरेशन जो पब्लिक के लिए बना हो,
पब्लिक के लिए मतलब उनको सर्विसेज देना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव होता है, ना कि टू अर्न प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जांपल LIC, ठीक है, LIC, इफ़ वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ LIC, then the main motive of LIC and to give the policy to any insured, what is the main motive? To compensate the person which is having a loss. अगर LIC का एग्जांपल हम लें, आगे हम 4th चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। LIC की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है, वहाँ उनका मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है तो 2 केस में आपको पॉलिसी का अमाउंट कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट, एट द मैच्योरिटी पीरियड, व्हेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द ड्यूरेशन टाइम विल बी कंप्लीटेड, मीन्स मैच्योरिटी, और ऑन डेथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि any person have taken 50,000 amount policy of LIC, ठीक, that person have paid only 20,000, ठीक है, उस 50,000 का उन्होंने अभी तक 20,000 पे किया और सडन उनकी डेथ हो गई। पॉलिसी का अमाउंट था 50,000, उन्होंने पे किया 20,000, प्रीमियम अमाउंट अभी 30 रुपीज़ हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। तो ये 30,000 कंपनी चाहे तो बचा कर सिर्फ 20,000 दे सकती है, लेकिन क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, सर्विसेज देने का है, तो डेथ पे, क्योंकि उन्होंने एज अ प्रॉमिस किया था या मैच्योरिटी पे या डेथ पे हम फुल्ली अमाउंट आपको पे करेंगे। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डेथ पे उनको जितने भी पॉलिसी का अमाउंट था, दैट इज़ 50,000 विल बी पेड टू द फैमिली ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। हालांकि प्रीमियम 20,000 ही पे हुआ है, लेकिन पॉलिसी का अमाउंट 50,000 था, तो वो उनको फुल्ली दिया जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि मेन मोटिव क्या है? टू गिव द सर्विसेज टू द पब्लिक, ठीक है। तो एनी कॉरपोरेशन विच इज़ अंडर द पब्लिक कॉरपोरेशन, उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? टू गिव द सर्विसेज टू द पब्लिक। नेक्स्ट इज इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की हर छोटी से छोटी रिपोर्ट, हर छोटी बात या हर छोटी सी रिपोर्टिंग अपने डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर बना के उनको पार्लियामेंट हाउस में शो करना होता है, वैसे ही पब्लिक कॉरपोरेशन को भी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके, रिपोर्ट रिलेटेड टू द अकाउंट्स, रिपोर्ट रिलेटेड टू द वर्किंग्स, रिपोर्ट रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑल दीज report have been made by the public corporation and should have shown in the parliament house। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वहाँ से होती है। क्यों? क्योंकि हम भाई फाइनेंस आपको दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, तो उसके बदले आपने क्या किया या कैसी आपकी आज तक चल रही है, उसकी रिपोर्ट देनी होती है। जैसे इन चार्जेस को टाइम टू टाइम प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना होता है कि इस क्लास में ये है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं, टीचर्स वर्क कर रही हैं कि नहीं, प्रॉपर क्लास हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट प्रॉपर लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वैसे ही पब्लिक कॉरपोरेशन को भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट पेश करनी होती है इन द पार्लियामेंट हाउस। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड हैव मेंटेन इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड इन पब्लिक कॉरपोरेशन ऑल्सो। पब्लिक कॉरपोरेशन हो या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, सारी सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं। बनाने के साथ साथ उनकी ऑडिटिंग करवाना भी ज़रूरी होता है, और उनकी ऑडिटिंग कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मीन्स जनरल वे में हम अगर कहें तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर सकता है, और वो ऑडिटर जो आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा, हु विल चूज़ दैट ऑडिटर? गवर्नमेंट ऑफिशियल विल चूज़ द CA or we can say auditor, and that auditor will check all the things, all the transaction and your books of accounts कि it is made correct or not, ठीक है। तो अक्सर होता है कि मैनिपुलेशन हो जाता है, या हम अपने ही किसी पर्सन को भेजकर ऑडिटिंग करवा लेते हैं,
जो चीज़ें रॉन्गली होती हैं वो चीज़ नहीं पता चल पाती। तो इस वजह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑडिटर को भेजते हैं ऑडिटिंग के वर्क के लिए। तो here we have completed the features of public corporation. Now moving towards the merits, or we can say advantages of public corporation. So the first merit of public corporation is administrative autonomy. So as I have told you, if you have learned the features of any topic very properly, very carefully, then you have made the merits and demerits by yourself. तो previously we have discussed ना कि autonomy, which autonomy, administrative autonomy is there in public corporation. उनको हर तरह की फ्रीडम होती है, पावर्स उनके पास होते हैं, जिस तरह की भी चीज़ें वो चाहें अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो और चाहे स्टाफ का सिलेक्शन हो, चाहे उनकी सैलरी से बेसिस हो। तो ऑटोनॉमी यहाँ कैसी होती है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेरेंस नहीं कर पाते। यहाँ पर एक बात आप और लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हर तरह से वो फ्री होते हैं, फ्रीडम होती है उनको कि रिक्रूटमेंट करना चाहें, किसी चीज़ों में चेंजेस करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट के मेंबर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होता है, तो वर्किंग प्रॉपरली होती है, एफिशिएंटली होती है। नेक्स्ट इज़ क्विक डिसीजन। ज़ाहिर है सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे हैं, सारे पावर्स हमारे हाथ में हैं, सारे राइट्स हमारे हाथ में हैं, तो डिसीजन भी क्विक होगा। देखिए डिसीजन में डिले कहाँ पर होता है? जहाँ पर कई सारे चैनल्स, कई सारे लोगों के थ्रू होकर वो डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा कि अगर हमें अपने डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कोई चीज़ डिसीजन लेना है, तो पहले रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट हाउस में गई, फिर पार्लियामेंट हाउस में मिनिस्टर्स हैं, उनमें डिस्कशन होगा, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी एडवाइस देंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा। तो कई सारे चैनल्स, कई सारे डिस्कशन के बाद एक डिसीजन हो पाता है, और फिर वो डिसीजन बनने के बाद अगर उसमें हम चेंजेस करना चाहें तो इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्विक डिसीजन होता है, और उस डिसीजन के बाद अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो भी अपने बेसिस पे कर सकते हैं। रेड टैपिज्म वाली सिचुएशन इसमें नहीं होती है। देखिए लिखा है एज देयर इज़ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेने में हमारी वहीं पर डिले होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो या बहुत सारे लोग इंक्लूड हों। कम लोग इंक्लूड होंगे तो क्विक डिसीजन होगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट थर्ड इज़ सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव हमने आपको बताया कि यहाँ पर मेन मोटिव इनका क्या होता है? टू गिव दिस सर्विस टू द जनरल पब्लिक या टू वेलफेयर टू द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या हुआ? अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं, पब्लिक के लिए को सर्विस देना, पब्लिक के लिए कुछ करना, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो सर्विस मोटिव यहाँ पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ में ये बोल रहा है कि हर चीज़ें, हर डिसीजन हम अपने हिसाब से करते हैं, हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट हो या रेम्यूनरेशन हो। और वहाँ पर अगर आपको याद हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर कोई भी मोटिवेशन या प्रमोशन की कोई भी बात नहीं होती है। वहाँ पर प्रमोशन कैसा होता है? सीनियरिटी बेसिस, मतलब एज बेसिस पे होता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता आपने अपने कितने एफ़र्ट्स डालें। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन भी होता है, मोटिवेशन, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाएगा उनकी स्किल्स के बेसिस पे, और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। वहाँ पर क्यों नहीं किया जाता मोटिवेट? क्योंकि अगर मोटिवेशन के लिए हम रिवॉर्ड या अवार्ड देंगे तो उसके लिए फ़ाइनेंस कौन देगा? गवर्नमेंट ने तो एनुअल बजट में जो जितना हमको फिक्स करके दे दिया उसके अलावा हम 1 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते हैं। तो इसी वजह से मोटिवेशन के वहाँ कोई चीज़ ही नहीं थी। यहाँ पर हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एम्प्लॉयज़ को हम खुद अपनी मर्ज़ी से रिक्रूट कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटी देकर। कहने का मतलब अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ को हमें खुश रखना है। जब वो खुश रहेंगे, उनको हम मोटिवेट करते रहेंगे, तो हमारा स्टाफ कैसा होगा? एफिशिएंट होगा। जब वो खुश रहेंगे तो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। ठीक है।
वर्कर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों या मेंबर्स हों हमारे कंपनी के या हमारे कॉरपोरेशन के, जब तक वो खुश नहीं होंगे तो वो भी वर्क नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। तो टाइम टू टाइम अगर हम उनको मोटिवेट करते रहें, उनके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ उनको देते रहें, तो हमारा स्टाफ एफिशिएंट होगा और फिर वर्क भी प्रॉपरली करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, देखा होगा आपने, ये इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी यहाँ कैसा होता है, प्रोफेशनल होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलग अलग लोगों के लिए ग्रुप बना के रखे हैं या लीडर बना देते हैं, ताकि वो लीडर अपनी टीम या अपने डिपार्टमेंट या अपने एरिया का हमको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते रहे और मैनेजमेंट का वर्क सही हो सके। देखिए, प्रिंसिपल हर क्लास में नहीं जा सकता, ना डेली जा सकता है, कभी कभी टाइम मिलने पर वो क्लास में या स्कूल में राउंड करता है। प्रिंसिपल क्योंकि डेली नहीं देख सकता है कि क्या हो रहा है, कौन सी क्लास प्रॉपर चल रही है, टीचर गई कि नहीं, बच्चे की क्या एक्टिविटी है, तो वो अपने बिहाफ पे इंचार्जेस को बनाते हैं। वैसे ही समझिए कि स्कूल को मैनेज जैसे प्रिंसिपल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो टाइम टू टाइम जा सकते हैं, डेली नहीं जा सकते हैं, तो अपने बिहाफ पे उन्होंने इंचार्जेस को बनाया। और इंचार्जेस का काम होता है कि टीचर्स या क्लास से रिलेटेड रिपोर्टिंग देना उनको, या हैंडल करना, मैनेज करना, है ना। कोई टीचर नहीं आया तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कौन हो रहेगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स द मैनेजमेंट वर्क। वैसे ही समझिए कि कॉरपोरेशन को मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बिहाफ पे अलग अलग ग्रुप में लोगों को लीडर्स बना देते हैं। जैसे लेबर के लिए ग्रुप बन गया, कंज्यूमर के लिए ग्रुप बन गया, या ट्रेड यूनियन जैसे होते हैं। ट्रेड यूनियन का वर्क क्या होता है कि लेबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको वो लेके आएँ या सारी चीज़ों को मैनेज करें। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट का वर्क अच्छा और सही हो जाता है। वैसे ही हमारे स्कूल का भी वर्क होता है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। Next we have the demerits, or we can say disadvantages of public corporation. We will discuss in next lecture. Here we have the case study related to the public corporation. We will discuss it in GMET class.